I'm going to record it, but very difficult to put it on YouTube because I don't know, some issue has happened with my YouTube channel. I have appealed to them. Let's see. I'm paying my gratitude. That is how universe gives us the challenge. Remember this, every time everything is not going to be okay, right? Shall we start? Okay, let's join our hands first. Close our eyes. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath. When you're taking your breath, see that your stomach is coming out, filling the air. And with every breath, just say thankful. Be thankful for the breath which you're taking in and out. Take one more deep breath and out. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, for giving us all that we require in our life and filling our lives with abundance and all the goods that you are pouring on us. Thank you, universe, for bringing us together on this platform so that we know that we need to enlighten ourselves and help to enlighten other people so that they live a joyful life. Thank you, universe, for blessing us for this time that we practice gratitude together and understand really what gratitude means. Thank you for making me the channel of blessings so that I enlighten each one's life who is present here and bring abundance in their lives. I want to see each and every person sitting here that they are happy right from their heart and not superficially. So bless me to enlighten the people's life. Thank you. Thank you. Thank you. So open your eyes with a big smile and just let me know how was yesterday's practice. किसने किसने अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया कल? यस मंजूषा जी, टेल मी. आपने ऑर्डर की आज ऑफिस में जाके आपने अपने मैनेजर को ऑर्डर किया था लिखने के लिए? मैम मैंने ग्रैटिट्यूड तो जरूर लिखा बट आज मैंने ऑर्डर नहीं किया बिकॉज मुझे बैक टू बैक काम आ रहा था. सो आई वाज इन द वर्क जोन. उसी काम के बीच में ही बोलना होता है. राइट राइट करके तो वो ओरली था ना, लिखना थोड़ी था. राइट राइट मैम, लिखने को याद था बट राइट राइट. करके तो वो वही था ना कि आपको लिखना थोड़ी है. आपको ओरली काम के बीच में ही, आप जब काम कर रहे हो आपको बोलना रहता है, राइट? राइट राइट. तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, घर का कर रहे हो, ऑफिस का, अगर आप ऐसे बोलोगे काम के बीच में तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे? राइट काम राइट तो रहने ही वाला है. करके तो काम देखो. द चैप्टर इज सो डिजाइन्ड ऑफ यस्टरडे that she knows that when you are at work you cannot write, right? So that is why she said कि you say orally. आप orally बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो आपके मैनेजर को. यानी आपको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा इनविजिबल मैनेजर है मेरे साथ में. अरे उसको राइट राइट मैम, थोड़ा थैंक यू सा मेरा ये आज काम करवाने के लिए. अरे थैंक यू मेरा इनविजिबल मैनेजर मेरा ये वाला काम करवाने के लिए. सिर्फ उसी के लिए बोल देना था ना थैंक यू. सो यू राइट हैव राइट टू मैम. ब्रिंग दिस इनटू प्रैक्टिस. और जब तक आप ये प्रैक्टिसेस में नहीं लाओगे ना, यू विल नॉट अचीव द रिजल्ट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट? आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
ओके, नाउ सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, द टुडेज चैप्टर इज द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. सो बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट जस्ट टेक योर बुक्स, टेक योर जर्नल्स, राइट डाउन. ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है? यानी रिलेशनशिप का हो सकता है, और इट कुड बी मनी. You are feeling a lack, or you're feeling that you don't have enough, or it could be anything. First write down कि आपको कौन से ऐसे रिलेशनशिप, सॉरी, रिलेशन में इश्यू हो रहा है, या मनी में हो रहा है, या करियर में हो रहा है. कौन सा ऐसा एरिया है, यू राइट डाउन, which is not working according to what you want. Today's chapter is very important. The magical way out of negativity. कितनी बार हमको ऐसा होता है कि हम चीजें जो चाह रहे हैं वो नहीं होती है, राइट? जो हम मांगते हैं वो नहीं पूरा हो रहा है, और फिर हम नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं. या फिर ऐसा भी होता है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, राइट, और हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, एंड देन फिर पूरा दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हम हमारे थॉट प्रोसेस में सिर्फ वो ही चलता रहता है. क्यों चलता है? बिकॉज हमने उसको स्टोर कर लिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. तो वो हमेशा, जब कोई भी चीज हमारे अंदर जब स्टोर होती है ना, तो वो कोई ना कोई फॉर्म में आती है, राइट? फिर आपके अंदर से गुस्सा निकलता है, आपके अंदर से कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल जाता है, आपके दिमाग में डाउट आ जाता है, राइट? तो ये चीजें हमको अफेक्ट करती है. तो मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. अब आप ये पिक्चर देखिए. पिक्चर में क्या दिख रहा है? कौन बोलेगा मुझे अनम्यूट करके? क्लियर दिख रहा है सबको पिक्चर? चलो बोलिए, कोई तो बोलिए, अनम्यूट करके बोलो, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? ऑब्जर्व करो. मैंने बोला ना, ये बुक में हर पिक्चर जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको? दरवाजा? यस मंजूषा जी, बोलिए. Yes, a door which is leading to light, like light. Dark से हम light में जा रहे हैं. राइट. तो आज समझो, यकीन कर लो, अपने आप के ऊपर ऐसा यकीन रखो कि यस, मैं जा रही हूँ लाइट की तरफ, या जा रहा हूँ लाइट की तरफ. आज मेरे लाइफ में जो भी एरियाज है जो डार्क है ना, जो भी एरियाज में मेरे ये डार्कनेस आई है, जो मैंने अभी एक वन, मैंने बोला एक लिखो अभी एरिया जिसमें आपको सबसे ज्यादा लग रहा है, उसमें ये लाइट जरूर आएगी अगर मैं आज की प्रैक्टिस फॉलो करूंगा या करूंगी. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817, 1892, Persian founder of Baha'i faith. Okay? So, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आप जब चीजें अच्छी चलती होती है, तब तो हम थैंकफुल होना भूल जाते हैं, राइट? बट जब नेगेटिव होती है, तब हम क्रिप और कंप्लेनिंग चालू कर देते हैं यूनिवर्स को. तो अगर ये सेंटेंस ये बता रहा है कि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर कुछ मेरे पास चैलेंज भी आया है, जैसे मैंने बोला आज मेरा यूट्यूब का चैनल का चैलेंज आया हुआ है मेरे पास, बट आई एम बीइंग इन ग्रेट, आई एम बीइंग ग्रेटफुल, एंड आई एम बीइंग कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेटर. जो भी उसमें से निकलेगा रिजल्ट, वो अच्छा ही होगा मेरे लिए, राइट? सो अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर आपको चैलेंजेस भी आते हैं तो आपको थैंकफुलनेस में रहना है. आपको उतना बिलीव रखना है कि ठीक है, ये यूनिवर्स मेरा जो है वो परीक्षा ले रहा है. सो वेदर इट्स अ रिलेशनशिप इन टर्मोइल, financial pressure, a lack of health, or problems in a job. Negative situations arise because of the lack of gratitude over a long period of time. अगर आप आज देखोगे कोई भी ऐसा एरिया है आपकी लाइफ में जहां पे कोई चीजें वर्क नहीं कर रही है, तो आपको ध्यान में आएगा
कि वहां पे आपने पूरे तरीके से ग्रेटिट्यूड नहीं पे किया होगा, राइट। और जो एरिया अच्छा चल रहा है, सपोज आपका जॉब अच्छा चल रहा है, राइट, तो उस एरिया में आपने ज्यादा कंप्लेन नहीं की होगी, भले फिर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा, बट उस एरिया में आपने कंप्लेन नहीं की होगी, करके उस एरिया में आपका अच्छा चल रहा है। तो चैलेंजेस कब आते हैं, नेगेटिविटी कब आती है, व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल। सो वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, या आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, पैसे की कमी है, बहुत ज्यादा लैक फील हो रहा है अभी, लैक ऑफ हेल्थ है, और प्रॉब्लम्स इन द जॉब, नेगेटिव सिचुएशंस अराइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने बहुत टाइम से उसको ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया है, और आप कंप्लेन ही करते जा रहे हो हर चीज में, अरे उसने ऐसे किया, अरे मैंने तो ऐसे बोला था पर उसने तो ऐसे बोल दिया, अरे मेरा बॉस तो ऐसा ही है, मैं क्या करूं, तुझे पता है मेरा हस्बैंड रोज मुझे क्रिप करता है, रोज मुझे कंप्लेन करता है। और फिर आपने क्या किया, आपने आपकी फ्रेंड को कॉल लगाया और आपने उसको वो स्टोरी सुना दी, और क्या होता है, वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैंने एक चीज बोली मेरी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड ने और मिर्ची मसाला लगा के दूसरे को बताई, दूसरी तीसरी ने और उसको मिर्ची मसाला लगा के आगे बढ़ा दी, एंड यू आर क्रिएटिंग अ चेन ऑफ नेगेटिव forces which is going to bring you back only negative. So if we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. हमने ली है लाइफ को ग्रांटेड, हमने हस्बैंड को ग्रांटेड लिया है, वाइफ को ग्रांटेड लिया है, बच्चों को ग्रांटेड लिया है, जॉब को ग्रांटेड लिया है, राइट। पैसे हमारे पास है तो उसको हमने ग्रांटेड लिया है। और जब वो चीज हमारे से दूर चली जाती है ना, जब कोई वो चीज हमको मिलती नहीं है, तब फिर हमको नेगेटिव सिचुएशन महसूस होती है, तब हम उसको उसकी ग्रेट वैल्यू समझ में आती है, राइट। और जब वो हमारे पास होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, कंप्लेन करते रहते हैं, अरे ठीक है ना, एक दो काम नहीं किया बाकी के तो कर लिया हस्बैंड ने, ठीक है यार, एक दिन खाना अच्छा नहीं बनाया अपन वाइफ ने, उतना घर तो संभाल लिया, साफ तो कर लिया, उसके लिए थैंक यू बोलो। सो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज द मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप आज देख रहे हो आपके मन में नेगेटिविटी है, तो वो इट इज बिकॉज ऑफ दैट यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल। बिकॉज वेन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी आर नॉट गिविंग थैंक्स इन रिटर्न, ओके, एंड वी स्टॉप द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइफ। Just as giving thanks to others will always lead to a life magically increasing, so must taking things for granted always lead to a life decreasing. तो अगर आप जितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उसमें आपको रिटर्न में मिलेगा, और आप अगर कम कर रहे हो तो कम मिलेगा। और आप ये देखोगे, ये बार बार हर चैप्टर में आएगा। आज आप लोगों ने 5 से 7 दिन हो गए, आप ये जर्नी में आ गए हो, राइट। टुडे इज द 7th डे प्रैक्टिस, बिफोर दैट वी वर 3 days टुगेदर, सो 10 days पकड़ो। तो 10 days में आपने हर किसी के, मुझे ऐसे लगता है, आप शेयर करो या नहीं करो, 0.1% तो फर्क हुआ होगा। यस और नो, अनम्यूट एंड टेल मी कि 0.1% या 1%, इतना सा 100% मैम। माइंडसेट में चेंज 100 आया होगा। हंड्रेड यस, परसेंट 100% इन द सेंस, जैसे लाइक यू नो एवरी डे आई एम सिटिंग फॉर योर सेशन, आई एम मुझे एक मेरे बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आती है, लाइक आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, एंड कुछ नेगेटिव भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, बट देन इट रिमाइंड्स मी दैट आई शुड नॉट स्पीक नेगेटिव। करेक्ट, करेक्ट, बट चेंज आ रहा है, राइट। माइंडसेट राइट, तो राइट, चेंज हो रहा है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे आपने पूरी नेगेटिविटी पहले की स्टोर कर ली है, राइट। और आप जितना स्टोर करते जाते हो, जितना स्टोर करते जाते हो, आप उसको एक बिलीव बना लेते हो, फिर राइट। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो वही से वर्क करना शुरू कर देता है, राइट। तो आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट इज गुड? ध्यान करो, कौन कौन जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है हम उसको थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते थे ना, इस जर्नी में आने से तो पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने भी कभी अपनी हेल्थ को थैंक यू बोला था।
आई वॉज टेकिंग माई हेल्थ फॉर ग्रांटेड, राइट? क्योंकि हम जब अच्छी चीज होती रहती है ना, तो हम उसकी तारीफ ही नहीं करते हैं। जब हमारी हेल्थ अच्छी है उसकी तारीफ करो, जब हस्बैंड कुछ अच्छा करता है उसकी तारीफ करो, जब वाइफ कुछ अच्छा बनाती है उसकी तारीफ करो, राइट? अरे हस्बैंड ने आपको जाके आज इतना अच्छा काम करके दे दिया, आप दो शब्द उसको अच्छे नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? आप ऐसे समझते हो अरे उसकी तो ड्यूटी है, मेरा ध्यान रखना तो उसकी ड्यूटी है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस। नो, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये समझो कि अगर आज आपके पास अच्छी हेल्थ है तो अभी से शुक्रगुजार हो जाओ। एटलीस्ट आपके, ठीक है आपका रोज सिर दुखता है, ठीक है आपको रोज सर्दी होती है, राइट? बट बाकी के तो बॉडी पार्ट्स आपके अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी आंखें अच्छे काम कर रही है, आपका कान अच्छा काम कर रहा है, आपके हाथ अच्छे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर चला पा रहे हो, आप खाना बना पा रहे हो, आप नहा पा रहे हो, आप कपड़े पहन पा रहे हो। इज इन दैट अमेजिंग? राइट? हमारे पास वो सब तो है। और डू यू ओनली नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट्स? राइट? हमको फ्रैक्चर हो गया, कुछ ब्रेक डाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सिर्फ तभी ध्यान देते हैं अपनी बॉडी पे, राइट? तब हमको, हमने क्या करना चाहिए, हम जाके पूछते हैं मैं ऐसा क्या खाऊं कि जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए? अरे यार मुझे कोई तो सजेशन दो, मैं क्या खाऊं, राइट? बट जब हमारी हेल्थ अच्छी होती तब आप जाके ये बात अपने फ्रेंड्स को बोलते हो क्या कि यार आज तो मैंने इतना मजा किया, मेरे लेग्स ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं कूद कूद के नाची हूँ आज। आज तो मेरी लेग्स ने इतना अच्छा ये किया कि मैं यहां से यहाँ चल पाई। आज मेरी लेग्स ने इतना सपोर्ट किया कि मैं डांस कर पाई, मैं पार्टी में जा पाई। आज मैं किसी की शादी में गई थी, तुझे पता है आज मेरी लेग्स ने इतना सपोर्ट किया कि मैं इतना डांस कर रही थी वहां पे। हम कभी ये बात बोलते ही नहीं है, राइट? तो हम हमारी बॉडी को तभी ध्यान देते हैं जब हमारे पास कुछ रहता नहीं है या वी बिकम सिक। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर जॉब एवरी डे? और डू यू ओनली वैल्यू योर जॉब व्हेन यू हियर दैट देयर विल बी कटबैक? जब आपको समझ में आया 2020 में अब सैलरी कटने वाली है, तब रियलाइज हुआ यार जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तब हमारी ज्यादा कंप्लेनिंग शुरू होती थी, भाई हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, राइट? आर यू ग्रेटफुल फॉर योर पे और सैलरी एवरी सिंगल टाइम यू रिसीव इट? और डू यू टेक योर पे और सैलरी फॉर ग्रांटेड? अरे भाई मैं तो काम करती हूँ, मैं तो काम करता हूँ पूरा महीना, मेरी कंपनी का फर्ज बनता है मुझे देने का। ऐसे थोड़ी होता है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, राइट? इमेजिन हाउ दे माइट बी फीलिंग। एटलीस्ट यू आर गेटिंग सैलरी, सो बी थैंकफुल। हर महीने जब आपके हाथ में सैलरी आती है सबसे पहले उसको थैंक यू बोलो। अगर आपका बिजनेस है, आप रोज क्लाइंट से डील करते हो और आपके पास रोज पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को थैंक यू बोलो। जो क्लाइंट आपके पास आता है उसको भर भर के शुक्रिया अदा करो। आप जितना शुक्रगुजार हो जाओगे ना कि ये यार आज ये क्लाइंट आया, उसने मेरे पास से 500 रुपए का माल लेके गया, वाह कितना अच्छा था वो क्लाइंट, मेरे को कैश पैसे दे के गया। तो आप जैसे ऐसी अच्छी चीजें बोलना शुरू करोगे आपके बिजनेस के बारे में भी, आप देखोगे आपके बिजनेस में डबल ट्रिपल गुना बरकत होनी शुरू हो जाएगी। सो आर यू टेक योर लव्ड वंस when everything is running smoothly? Are you are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when they are in problems? कभी आपने अपने लोगों से बात किया या उनके बारे में अच्छी बात की जब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल? अरे यार आज तूने मुझे बहुत खुश किया पिक्चर में ले जाके, तुझे पता है आज तुम मुझे यहाँ पे शॉपिंग लेके गए ना तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी आपने ऐसी बात की क्या? राइट? वी डोंट स्पीक ओनली दैट वे। तो ट्राई टू स्पीक and being grateful, being thankful that time when already the person is there with you, not when the problems come in your life and relationship में problems आ जाते हैं हम तब ये करें। और do you think, okay, are you grateful when your car is working well? ध्यान करो कि आपकी बाइक अच्छी चल रही है, तभी आप उसको थैंक यू बोलते हो। जब आप चलाते हो तब उसको थैंक यू बोलते हो। अब आप बोलोगे मारिया आप ये भी चीजें करनी है यार, उसमें क्या, मैंने तो बाइक खरीदी है, पेट्रोल भी तो मैं ही डलवाती हूँ। बट इमेजिन द डे व्हेन द बाइक स्टॉप्स ऑन द रोड,
आपकी हालत क्या होती है, right? So from today onwards, you have to be very careful on what you're speaking also. Are you grateful to be alive each day, or do you take life for granted? Every day, get up early in the morning and say thank you कि मैं आज जिंदा हूँ. I could see this day. There are some people who die on the bed. So taking things for granted results in complaining. Okay, तो जब हम things granted ले लेते हैं ना, ठीक है यार मेरे पास लैपटॉप है, सब ये है, पर फिर भी उसमें ये प्रॉब्लम है. अरे मेरे पास मिक्सर है या पर वो वाला नहीं है जो मेरी पड़ोसी के पास है. राइट, अगर हम ये सब चीजों में जा रहे हैं ना, तो वी आर गोइंग इनटू मोर नेगेटिव थॉट्स. एंड जो हम सी टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड रिजल्ट्स इन कंप्लेनिंग, नेगेटिव थॉट्स एंड वर्ड्स. तो जो आप कंप्लेन करते हो, जो आप सोचते हो, अगर आपने थॉट में भी वो कंप्लेन ला दी ना, and the words you speak, you are going 10 steps behind. You are going 10 steps behind from your dreams. So अगर आप मन में भी विचार लाते हो ना किसी के बारे में बुरा, या किसी के बारे में कंप्लेन, या इवन अपने हस्बैंड के बारे में, वाइफ या बच्चों के बारे में, या इन लॉज के बारे में, आप 10 कदम पीछे जा रहे हो. सो व्हेन यू कंप्लेन, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू मस्ट ब्रिंग मोर थिंग्स इनटू योर लाइफ टू कंप्लेन अबाउट. तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हमेशा सेंटेंस याद रखना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो व्हेन यू कंप्लेन, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू विल ब्रिंग मोर थिंग्स इनटू योर लाइफ. आप देखोगे दूसरे और कंप्लेन कर रहे हैं आपको आके, आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में लोग कंप्लेन करेंगे. आपका बॉस आपको बार बार आपके काम के बारे में कंप्लेन करेगा. So if you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger waiting in the lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away with every complaint. Okay? सो इफ सी, अगर हम वेदर, अरे यार आज बहुत गर्मी है, आज कपड़े भी नहीं आज तो बहुत बारिश हो गई, कपड़े ही नहीं सूख रहे, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये शब्दों पे ध्यान दो. इसके लिए मैंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है कि आई डोंट ट्राई टू स्पीक नेगेटिव. भले दूसरा कोई भी बोलता हो वेदर के बारे में, मैं वहां पे मम हो जाती हूँ, एकदम मम. भले मेरी फ्रेंड्स भी बात करती हूँ ना, तो मैं उस बारे में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं बैठी रहूंगी वहां पे, बट मैं मेरे माइंड में दूसरा और कुछ सोचती जाऊंगी और थैंक यू बोलती रहूंगी. बट आई विल नॉट ओपन माई माउथ, आई विल नॉट ओपन माई माउथ बाय सेइंग दैट द वेदर इज बैड, और ये बैड हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, या इतनी सर्दी फैल रही है, या सब बीमार हो रहे हैं. हम बात क्या कर रहे हैं यार, ये भी तो सोचो, देखो, सुनो. कि जब हम कोई, हम अभी ये जर्नी में आए हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमको वेदर के बारे में कंप्लेन, हमारे हेल्थ के बारे में कंप्लेन, हमारे घर के बारे में कंप्लेन, हमको जो खाने को मिल रहा है उसके बारे में कंप्लेन करना अलाउड ही नहीं है. बिकॉज वी आर इन टू ग्रेटिट्यूड जर्नी. तो आज से अपने आप को ऐसे बोलो, यस आई विल, लाइक चैलेंज लो कि मैं अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव नहीं चीज बोलूंगी, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलूंगा या बोलूंगी. ट्राई करके देखो एक दिन कितना कर पाते हो, और लिखना भी जरूर कि आप कर पाए क्या नहीं कर पाए. टुमारो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो सी, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट वेदर, ट्रैफिक. अरे कितना ट्रैफिक है पुणे में, कितना ट्रैफिक बढ़ गया, जिधर जाते हैं उधर ट्रैफिक, जिधर जाते यू कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस, टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स. अरे चाय पे मिल रहे हो, अच्छी बातें करो, ग्रेटिट्यूड की बातें करो, अपनी चाय को थैंक यू बोलो, उसके ऊपर फोकस करो. हम क्या करते हैं, अरे बॉस ने आज मेरे को बुलाया था, मालूम, ये काम दिया, अरे वो किया, अरे वो किया, ये किया, हम यही बोलते रहते हैं. इवन व्हेन वी मीट अवर कलीग्स, आप कैंटीन में भी जाके यही बातें कर रहे हो. तो कितना वो रिकॉर्ड प्ले होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है माइंड में, कि इट गेट्स स्टोर्ड. राइट, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर फ्रेंड, एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के बारे में, स्ट्रेंजर वेटिंग इन द लाइन, बिल्स भरना पड़ता है यार, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, रोज कॉस्ट बढ़ रहा है, कितने पैसे डालने पड़ रहे हैं, सोने का भाव बढ़ रहा है, भाजी का भाव बढ़ रहा है, आज टमाटे का भाव बढ़ गया, कल प्याज का भाव बढ़ गया. हम यही बोलते रहते हैं. Right, we are never thankful to the farmers who are still supplying with in under all conditions.
all those food items to us, and you are pushing your dream life further away with every complaint. आप दिन में ध्यान करना कल, राइट फ्रॉम टुडे, अभी से, कि आप कंप्लेन कितनी बार करते हो, अपने आप को अलर्ट रखो। और कल क्या करोगे, कल के दिन में एक प्रैक्टिस देती हूँ, राइट डाउन द प्रैक्टिस एंड टेक, हाँ प्लीज एवरीवन। आप जब कंप्लेन करोगे ना, आप एक छोटे चिट ऑफ पेपर में लिखोगे कि टुडे आई कंप्लेन अबाउट दिस। इट टेक्स हार्डली 2 seconds टू राइट वन सेंटेंस, आई डोंट थिंक सो इट्स मोर देन दैट। तो जस्ट राइट, सी टुडे आई कंप्लेन अबाउट द वेदर, और टुडे आई कंप्लेन अबाउट माय फ्रेंड, और टुडे आई कंप्लेन अबाउट माय ऑफिस। उसकी चिट बनाओ और आपके पास एक इसमें डाल दो, जार में या बॉक्स में। पूरे दिन में आपको ध्यान आएगा आपने कितनी बार कंप्लेन किया है। आप काउंट करोगे ना, बाय एंड ऑफ द नाइट आपको ध्यान में आएगा कि आपने कितनी बार कंप्लेन किया है, कि नाउ यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ट्राई दिस प्रैक्टिस। क्योंकि हम बोलते हैं, अरे मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। अगर थॉट में भी वो आ गया ना, तो दैट इज अ कंप्लेन। सो राइट डाउन, मैंने आज ऐसा बुरा सोचा मेरी कलीग के बारे में। राइट डाउन दैट, try writing down, and you'll understand. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. तो अगर आप gratefulness में हो तो आप criticize नहीं करोगे, आप किसी को blame नहीं करोगे। यहाँ पे आपको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी एरिया, मेरे एरिया वर्क नहीं कर रहे, वेदर वो रिलेशनशिप हो, पैसा, लैक ऑफ पैसा हो, या करियर में हो, जॉब में हो, यू हैव टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने वो थॉट प्रोसेस में क्रिएट किया है। ओके, मैंने वो प्रोसेस में क्रिएट किया है। And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. Okay. And the best news is, see, that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke just like a magic. धुएं की तरह उड़ जाएगा अगर आपने आज की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर ली। फर्स्ट, as difficult as it might be, you have to look for the things to be grateful for in the negative situation. Okay? अब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आपको करना क्या है, राइट? आपको, you first, as difficult as it may be, you have to look for the things to be grateful for in the negative situation. यानी ये नेगेटिव सिचुएशन तो आ गया है, बट मैं उसमें ऐसी कौन सी 10 चीजें ढूंढूं कि जिसमें मुझे वो बंदे या मेरी जॉब या मुझे पैसे के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकूं। अब आप बोलोगे पैसे के लिए मैं कैसे लिखूं? तो अगर आपके पास लैक है अभी, तो आपके पास पहले जो भी चीजों के लिए पैसे थे, आपने घर में टीवी लाया, अपने घर में फ्रिज लाया, आपने कपड़े खरीदे, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी होगी सोने की, राइट, या आपने बाइक खरीदी होगी, तभी तो पैसे थे ना आपके पास, राइट? तो यू हैव टू राइट थैंकफुलनेस फॉर द पास्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड, वी आर कमिंग टू दैट फोकस ग्रैटिट्यूड। दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रैटिट्यूड। दैट हम पहले पास्ट का लिखेंगे, फिर हम प्रेजेंट का लिखेंगे, एंड देन वी गो टू आवर ड्रीम्स। ओके, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ। तो आपको आज क्या करना है, कोई भी जो भी आपका एरिया आपने लिखा है उसके ऊपर आपको 10 थिंग्स ग्रेटफुलनेस के लिए लिखनी है कि वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, दैट रिलेशनशिप और एरिया ऑफ योर जॉब। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उसके अंदर जो पहले आपके पास जॉब है या थी, उसके पहले जो पहले जॉब थी वो अच्छी थी, कितना पैसा आता था उस जॉब में से, कितने आज आप काम करते थे, बी थैंकफुल कि मुझे यार इतने घंटे काम करना पड़ता था तभी मेरे पास लैपटॉप था। सो बी थैंकफुल फॉर दैट लैपटॉप, राइट? Especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. कुछ भी हो, आज आपको यकीन करना है कि मेरा जो भी नेगेटिव एरिया है ना, मैं उसको बदल के रहूंगा या रहूंगी। वॉल्ट डिज्नी, हु न्यू अबाउट द ट्रू मैजिक ऑफ लाइफ, आपने सुना होगा डिज्नी मूवीज का, राइट?
Walt Disney, who knew about true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. एक मूवी है Pollyanna, मैं ग्रुप में डालूंगी ये सेशन होने के बाद. I'll try to put it in Hindi so that we understand properly. ये मूवी में क्या बताया हुआ है, एक लड़की बताई है. इज सपना मैम देयर टुडे? मुझे दिख नहीं रहे हैं. सपना मैम दिख रही है क्या आपको? मुझे भी नहीं दिख रही है, नहीं तो अभी तक आवाज आता था उनका. She needs to watch this basically. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do in his movie Pollyanna. डिज्नी यानी ये मूवी में उन्होंने ये बताया है कि एक लड़की होती है, वो अपनी मम्मी को खो देती है. उनकी उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है, उसके फादर नहीं होते हैं, और उसके पास सिर्फ उसकी मम्मी होती है. उसकी मम्मी जब चली जाती है तो उसकी जो मम्मी की सिस्टर होती है ना, या उसकी स्टेप मदर होती है, वो उसको अपने पास बुला लेती है. राइट, वो उसको बुलाने के लिए भेजती है, और वो अपने पास उसको रखती है. अब ये लड़की के पास कुछ घर नहीं होता है, कुछ नहीं, तो वो चली जाती है. बट वो जो स्टेप मदर होती है ना, वो काफी उसको मिस ट्रीट करती है, या जो भी आंट होती है उसके अंदर. तो वो उसको बहुत मिस ट्रीट करती है, उसको गंदा सा रूम ऐसा सब देती है, उसको खाने के लिए प्रॉपर. तो वो हमेशा जो भी चीज बोलती है, जाने तो मेरे पास छत तो है, अरे मेरे पास ये रूम में विंडो तो है, ये विंडो में से मुझे ये चीज तो दिखती है. और वो खुद से ऐसे होती थी, और वो बोलती थी, वो ग्लैड गेम खेलती थी अपने आप को, दैट इज कॉल्ड द ग्लैड गेम. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about. ठीक है यार, मेरे पास आज बड़ा घर नहीं है, पर मेरे पास 1 BHK तो है. Right? So to play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about. मेरे ये 1 BHK में मेरे पास फ्रिज है, टीवी है, सोफा है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है. To be glad for that. So say the glad game, to look as many as things as you can to be glad about, especially in a negative situation. तो अगर आपके पास जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाता है ना, उसमें से भी आपको पॉजिटिव ढूंढ के उसके लिए ग्रेटफुलनेस होना है. देन यू आर एबल टू इरेज दैट नेगेटिव सिचुएशन. ठीक है. सो फाइंडिंग द थिंग्स, अगर आप, आई टेल यू फर्दर, वेट. Finding the things to be glad about, or finding things to be grateful for in a negative situations, make the solutions appear. देखो मैं ध्यान से पढ़ रही हूं फिर से. फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट, क्योंकि आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो. आप देखोगे वही नेगेटिव सिचुएशन, किसके साथ रिलेशनशिप खराब हो गया, आप देखोगे वही सिचुएशंस में आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे. बट आप लिखोगे तो, आप लिखो तो सही. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us be thankful. कितने अच्छे शब्द है. शब्द पढ़े आपने, शब्द सुने, शब्द समझो. ग्रेटफुलनेस फॉर व्हाट? कुछ तो छोटे चीज हो रही है. राइट. मेरे रिलेशनशिप में अगर मैं प्रे कर रही हूँ, या मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, उसमें कुछ तो चेंज हो रहा है. छोटा सा भी चेंज क्यों नहीं हो, बट हो तो रहा है. और शी सेइंग व्हाट बुद्धा सेड, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल. ओके. अपने आप को उठाओ और हर चीज के लिए थैंक यू बोलो. फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, बहुत सारी चीजें हमको सीखने को नहीं मिली. आज हम इस जर्नी में है मैजिक बुक की. एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल. एटलीस्ट हमने थोड़े मैजिक्स देखने शुरू कर दिए. राइट. एटलीस्ट मेरा थोड़ा माइंडसेट तो चेंज होने लगा. सो एंड इफ वी डिडंट लर्न अ लिटिल, एटलीस्ट वी डिडंट गेट सिक. हम बीमार तो नहीं पड़े. एंड एंड इफ वी गॉट सिक, एटलीस्ट हम मरे तो नहीं.
So let us all be thankful. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. तो बुद्धा जी भी ये बोल के गए, राइट, कि कुछ नहीं तो हमको थोड़ा तो मिला. तो लुक इन टू दैट एंड से आई एम ग्लैड फॉर दिस. टेक, आई एम ग्लैड फॉर दिस, आई एम ग्लैड दैट आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस. तो आज आपको क्या करना है? लेट्स बुद्धा's वर्ड्स बी योर इंस्पिरेशन. And today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. मैंने इसके लिए आपको बोला कि आप पहले लिखो कि आपका सबसे बड़ा, पहले स्टार्टिंग में, कि आपका कौन सा ऐसा एरिया है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो आज. सो एंड लुक फॉर 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. उसमें से 10 अच्छी अच्छी चीजें निकालो और लिखो. दिल से लिखो, सिर्फ लिखना नहीं है, फील भी करना. यार ठीक है यार, उसने आज गुस्सा करके मेरे साथ में झगड़ा कर लिया, पर मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी थी ना, हम दोनों मिलते थे, हम चाय पे जाते थे, हम दोनों मिलके सैंडविच खाते थे. रिमेंबर ऑल दोज मेमोरीज एंड बी थैंकफुल. अगर आपका रिलेशनशिप में कोई इशू है, अगर जॉब में है, तो आप जॉब के बारे में बोलो कि मेरे पास इतनी अच्छी जॉब थी पहले, आज आप जॉब नहीं करते हो, तो आप बोलो पहले मेरे पास कितनी अच्छी जॉब थी जिसमें मैं इतना ग्रेटफुल थी, मेरे पास इतना काम आता था, मैं काम करती थी, उसमें मुझे इंटरेस्ट आता था, मेरे पास सैलरी आती थी. बट अगर आप वो करना भूल जाओगे ना, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट. आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग. सी, वो भी बता रही हैं कि चैलेंजिंग होता है, राइट. आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग टू बिगिन दिस प्रैक्टिस, बट बुद्धा इज शोइंग यू द वे टू डू इट. Make a written list of 10 things on your computer or on your gratitude journal. As an example, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है that your problem might be that you are out of work. किसी की जॉब चली गई है, राइट. उन्होंने कभी एग्जाम्पल दिया है कि वो बंदा कैसे, क्या 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 चीजें लिखेगा. So, as an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. यानी आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, बट आपको अभी भी जॉब नहीं मिल रहा है. टू मैजिकली टर्न दिस सिचुएशन, अब ये सिचुएशन तो आ गई है नेगेटिव आपके सामने, अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है? टू मैजिकली टर्न दिस सिचुएशन अराउंड, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. What is concentrated gratitude practice? किसको पता है? यानी फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करेंगे हम उसको लेके, कंटिन्यूस वो एरिया, वो नेगेटिव सिचुएशन को लेके हम. मैं बोलती हूँ कि अगर आपका नेगेटिव सिचुएशन काफी डीप है, राइट, तो आपको बहुत ज्यादा लिखना है. सिर्फ एक दिन में, 10 दिन में 10 ग्रैटिट्यूड लिख के कुछ नहीं होने वाला है. ओके, क्योंकि जितना डीप आपका वो वुंड है ना, आपने खड्डे जो आपके अंदर खोदे हुए हैं, इसको जमा कर करके और रिलेशनशिप और खराब कर करके, कंप्लेन कर करके, बुरा देख देख के वो बंदे में, वो खड्डों को भरना इतना इजी थोड़ी होगा, राइट. अब आपकी जो एज है, और जो आपकी एज जब आपने ये चीज की थी, हो सकता है 2 साल हो, 3 साल पहले हुआ हो, 5 साल पहले हुआ हो, तो आपको इतने सारे खड्डे तो आपने अभी कर दिए हैं डीप. अब वो खड्डों को भरने के लिए अब आप एक बार थोड़ा सा पत्थर या मिट्टी डालोगे, तो आपको लगता है क्या वो खड्डे भर जाएंगे? नहीं होगा ना. तो आप जितना ग्रैटिट्यूड भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो भी जाके वो नेगेटिव सिचुएशन रिजॉल्व होगा. As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude. And here are some examples. I am so grateful to have had more time for my family during this period. देखो उसने क्या निकाला कि ठीक है, मेरा जॉब नहीं था, पर मेरे पास उतना, मुझे ज्यादा टाइम मिला कि मैं मेरी फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाया. आई एम ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज इन लॉट बेटर ऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम आई हैड. नहीं तो जब मैं काम कर रहा था, मैं डिसऑर्गेनाइज था, मुझे भाग दौड़ करना पड़ रहा था. बट अभी मेरी लाइफ थोड़ी ऑर्डर में आ गई है, राइट, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड अ जॉब मोस्ट ऑफ माई लाइफ and that I am experienced.
कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस तो है, कि मेरे पास जॉब था। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड सडनली। अभी मुझे पता चला है कि मेरे पास जॉब नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने इतने साल काम तो किया है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस तो है। आई एम ग्रेटफुल। नहीं तो कोई कोई लोगों के पास वो भी नहीं होता है, ना उनके पास जॉब होता है और ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है। सो आई एम ग्रेटफुल दैट देर आर जॉब्स आउट देयर एंड मोर न्यू जॉब्स आर अपीयरिंग ईच डे। पॉजिटिवली देख रहा है वो अपने आप को कि यस ठीक है, मेरे लिए बाहर जॉब्स और है अवेलेबल, एंड दे आर कमिंग टू मी। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई लर्न इन अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड इन गोइंग फॉर इंटरव्यूज। वो इतनी बार इंटरव्यू दे चुका है कि वो बोल रहा है कि मुझे और नया एक्सपीरियंस मिल रहा है इंटरव्यूज दे दे के, तो वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। राइट। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माई हेल्थ दैट आई कैन वर्क अपॉन। अब मैं मेरे हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं एटलीस्ट मेरी हेल्थ का ध्यान रख पा रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिलीज एंकरेजमेंट एंड सपोर्ट। एटलीस्ट मेरी फैमिली मुझे एंकरेज कर रही है कि तुम ढूंढो और जॉब। आई एम ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट आई हैव हैड बिकॉज आई नीडेड इट। मे बी मैं बहुत सालों से काम कर रहा था और अब मुझे रेस्ट की जरूरत थी, करके मेरा जॉब चला गया, या आई एम अनएम्प्लॉयड। आई एम ग्रेटफुल दैट थ्रू लूजिंग माई जॉब I realized how much having a job means to me. I had never realized that until तब तक मुझे जॉब की वैल्यू नहीं थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरी जॉब चली गई तो एटलीस्ट मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। So as a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. See, as a result of the unemployed person's gratitude, यानी उसने इतने सारे gratitude लिख दिए, they will attract different circumstances, situations that will magically change। हो सकता है उसके पास सामने से जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ जाए। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। अगर आप आज सोचते हो ना यार मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो एक हिंदी वर्ड में क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी झंड हो गई है, बोलते हैं ना आजकल बहुत। बहना सुन, लग इमीडिएटली वी कॉल अप आ फ्रेंड, बहना सुन मेरी जिंदगी तो झंड हो गई है। सो अंडरस्टैंड कि जितना आप ग्रैटिट्यूड डालना शुरू करोगे ना, उतनी आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और अगर हम नेगेटिव सिचुएशन बोलेंगे, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन एंड देर आर अनलिमिटेड वेज दैट द नेगेटिव सिचुएशन कैन चेंज। डिफरेंट वे से चेंज हो सकता है सामने से कोई आपको जॉब का ऑफर दे दे, सामने से कोई आपको पैसा दे दे कि मैं पैसा देता हूं तो तेरा बिजनेस चालू कर दे फिर से। All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Sorry. So let's take another example, a son who's, अभी ये रिलेशनशिप के ऊपर भी एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान से देखना। Let's take another example, a son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. यानी वो कितना भी अच्छा करता है पर वो अपने फादर की नजरों में अच्छा नहीं हो पाता है, इसके लिए उसकी और उसके फादर की रिलेशनशिप खराब है। हो सकता है कोई मदर डॉटर की रिलेशनशिप खराब हो सकता है कोई पति पत्नी की रिलेशनशिप खराब हो सकता है कोई कोई एम्प्लॉय और बॉस की रिलेशनशिप खराब हो। आपको उसमें जो पॉजिटिविटी है वो देखना है। द सन फील्स नो मैटर वॉट ही डज इट नेवर सीम्स टू बी गुड इनफ फॉर हिज फादर। वो कितना भी अच्छा कर रहा है उसके फादर के लिए वो अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा उसको बुरा ही समझता है उसका फादर। ये एक बेटे के दिमाग में चल रहे थॉट प्रोसेस है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई है, फादर एंड सन की। आई तो वो क्या लिखता है, आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर रियली गुड। तो वो ये देख रहा है चलो ठीक है मेरे फादर के साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं, पर बाकी की तो मेरी रिलेशनशिप अच्छे है। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके रिलेशनशिप हर किसी के साथ में खराब है ना, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो आपको उस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आज मेरी जिंदगी में अगर मेरे सब जगह से रिश्तेदारों से, मेरे पड़ोसियों से, मेरे
हस्बैंड से, मेरे इन लॉ से, या मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से, मेरे कलीग से, मेरे फ्रेंड से, मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ में अगर मेरे रिलेशनशिप खराब हुए है, तो दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड। अब वो क्या बोल रहा है, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड सो दैट आई कुड हैव द एजुकेशन दैट ही डिडंट गेट टू हैव। कि एटलीस्ट मेरे पास एजुकेशन था, उनके पास वो भी नहीं था। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर सपोर्टिंग माई फैमिली थ्रू माई चाइल्डहुड, बिकॉज आई डेंट हैव अ क्लू कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसा लाने के लिए। राइट, तो वो उसने उसके लिए भी शुक्रगुजार हो गया कि बचपन में डैडी ने पैसा दिया, मेरी फैमिली को सपोर्ट किया, एंड हाउ मच हार्ड वर्क एंड मनी टुक टू कीप अ फैमिली गोइंग। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर टेकिंग, उसने नेगेटिव नहीं देखा, जो भी फादर में नेगेटिव था उसने नेगेटिव नहीं देखा, उसने जो भी अच्छा था वो ढूंढा। ओके, तो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी बेटी या बेटे या हस्बैंड या वाइफ या बॉस या कलीग से अच्छा नहीं है, आप सिर्फ उसमें पहले अच्छा देखना शुरू करो, और आप अपने आप को चैलेंज करो कि ये मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगी लिखूंगी और फील भी करूंगी। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लिख रहे हो और फीलिंग में वही आ रहा है कि हाँ ना यार वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा ही है, वो तो सुनेगा ही नहीं, क्या मतलब। तो फिर दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू हैव टू मॉनिटर योर थॉट्स ऑल्सो। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर टेकिंग मी टू द बास्केटबॉल एवरी सैटरडे व्हेन आई वाज चाइल्ड। उसने अपने सब बचपन की यादें याद की कि पापा तभी तो मुझे लेके जाते थे। आई एम ग्रेटफुल दैट माई फादर इज नॉट as tough on me these days as he used to be in the past। बचपन में शायद वो काफी स्ट्रिक्ट थे, बट एटलीस्ट अभी वो स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे साथ में। आई एम ग्रेटफुल दैट माई फादर केयर सो मच अबाउट मी बिकॉज ही वुडंट बी टफ ही इफ ही डिडंट केयर। अगर वो इतने टफ थे तो उनको अभी उसको समझ में आ रहा है कि वो टफ थे बिकॉज ही केयर्ड फॉर मी। उनको मेरी परवाह थी करके वो टफ रहे मेरे साथ में। आई एम ग्रेटफुल दैट थ्रू माई रिलेशनशिप विथ माई फादर आई हैव लर्न टू हैव कंपैशन एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विथ माई ओन चिल्ड्रन। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ में मुझे कितना अच्छा प्यार से रहना है। राइट, क्योंकि अगर मेरे फादर मेरे साथ में नहीं प्यार से रहे तो मुझे प्यार से रहना है। राइट, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर शोइंग मी हाउ इम्पोर्टेंट एनकरेजमेंट इज इन रेजिंग हैप्पी कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। उनको वो समझ में आ रहा है कि मेरे डैडी मुझे एटलीस्ट एनकरेज करते थे टू बी कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज व्हाट आई कैन डू व्हेन रेजिंग माय ओन चिल्ड्रन। I'm really grateful that when I get to laugh with my father, some people never, when I get to laugh with my father, at least मैं कभी कभी हंस पाता हूँ मेरी पापा के साथ में। Some people never got to do that also because they didn't have father। किसी के पास तो फादर ही नहीं था कि उनके साथ में वो हंस सके। राइट, एंड फॉर अदर्स who have lost their father, दे विल नेवर हैव द चांस टू लाफ विद देयर फादर अगेन। और जिन्होंने अभी अभी अपने पिता को खोया और वो अभी उनके साथ हंस भी नहीं पाते। सो आई एम सो ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव माई फादर बिकॉज अमिड द टफ टाइम्स देर हैव बीन गुड टाइम्स एंड देर विल बी मोर गुड टाइम्स अहेड विथ माई फादर। तो वो अपने आप को पॉजिटिविटी दे रहा है कि एटलीस्ट मेरे पास मेरे फादर है कि कभी ऐसा बहुत ज्यादा टफ टाइम आ गया तो मेरे डैडी मेरे पास रहेंगे तो सही, मेरे पिता मेरा साथ तो देंगे, एटलीस्ट मुझे कुछ एनकरेजमेंट के शब्द तो बोलेंगे। तो ही इज लुकिंग इनटू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। तो यहाँ इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक तो जॉब का एक तो रिलेशनशिप का, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू लुक ग्रेटफुलनेस इन द नेगेटिव सिचुएशन। ओके, हाउ टू लुक ग्रेटफुलनेस इन द नेगेटिव सिचुएशन। और आज आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि यस मैं तो ये करूंगी, कुछ भी हो जाए ये चेंज मैं अंदर लाऊंगी और मैं उसका सोल्यूशन भी निकालूंगी। राइट, मुझे अपना सोल्यूशन भी निकालना है इसमें से। ये नेगेटिव सिचुएशन की जिम्मेदार मैं हूं। ओके, या मैं जिम्मेदार हूं या हूं। ओके, क्योंकि ये मैंने मेरे थॉट्स में क्रिएट किया पहले, फिर मैं वो रियलिटी में लेके आई क्योंकि मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, एंड वो मेरे सामने वो नेगेटिव सिचुएशन आ गया। जब आप पूरी तरीके से सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो चीजें चेंज होना शुरू होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द सन्स हार्ट फेल फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिल से उसने ग्रेटिट्यूड किया अपने फादर के लिए, ही चेंज द रिलेशनशिप फॉर द बेटर। द सन चेंज द वे ही थिंक्स एंड फील्स अबाउट हिज फादर, क्योंकि उसकी भी सोच बदली
कि वो जिस तरीके से गलत सोच रखता था वो भी सोच निकल गई, विच इमीडिएटली चेंजेस व्हाट ही अट्रैक्ट्स फ्रॉम हिज फादर, और उसके फादर की भी सोच बदल गई। तो ये नेगेटिव सिचुएशन रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इवन दो, क्योंकि हम वो एनर्जी पास करते हैं, राइट? जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, वी आर पासिंग दैट एनर्जी टू द फ्रंट पर्सन। आपकी जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, आप उसके अंदर अच्छी चीजें देखना शुरू कर लेते हो, आप देखना सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। वो अच्छी एनर्जी वाइब्रेट करके आपके थ्रू पास करना शुरू कर देता है। इवन दैट पर्सन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन अ वेरी गुड एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड एनर्जी टू रिजॉल्व दैट नेगेटिव सिचुएशन। सो इवन दो द सन वॉज बींग ग्रेटफुल इन हिज माइंड, देखो ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम सामने वाले पर्सन को जाके बोल रहे हैं क्या? क्या हम हमारे बॉस को बोल रहे हैं क्या? क्या हम हमारे पति को बोल रहे हैं क्या? क्या हमारी वाइफ को बोल रहे हैं क्या? क्या हम हमारे बच्चे को बोल रहे हैं? नहीं, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे माइंड में कर रहे हैं। एंड एट एन एनर्जेटिक एंड क्वांटम लेवल, इवन क्वांटम लेवल में भी आप जाओगे ना एकदम बारीक इसमें, ये ग्रैटिट्यूड से आप ये वो चीजें चेंज कर पाओगे। द सन्स ग्रैटिट्यूड विल हैव मैजिकल इफेक्ट। बोलते हैं ना रिपल्स, हम बोलते हैं ना, हम पत्थर जब डालते हैं पानी में तो क्या होता है? रिपल्स। तो वैसे जब आप ग्रैटिट्यूड का पत्थर डालोगे ना, तो उसके अंदर से वो रिपल्स उठ के आएगी। So at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. ओके, ध्यान करो, प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड, उसको कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड में रहना है उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सन मस्ट रिसीव फार बेटर सर्कमस्टेंसेस विथ हिज फादर, एंड देयर रिलेशनशिप मस्ट बिगिन टू इम्प्रूव इमीडिएटली। तो आपको हर ऐसा नहीं कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड कर दिया, कल मेरे मेरे हस्बैंड या बच्चे के साथ में रिलेशनशिप अच्छा हो गया, फिर मैं ग्रेटिट्यूड भूल गई, और फिर मुझे वही नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है, और फिर मैं बोल रही, अरे ये तो चेंज होने वाली ही नहीं है, ये तो चेंज होने वाला ही नहीं है। नहीं, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना। या फिर वो सामने वाले बंदे ने कोई नेगेटिव आपको बोल दिया, आपके माइंड में वो डाउट नहीं आना चाहिए कि नहीं ये बंदा ऐसा है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द नेगेटिव सिचुएशन। आपका माइंडसेट चेंज करना पहले जरूरी है, देन यू विल एट द क्वांटम लेवल यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट। So you can tell that, remember, you can tell gratitude is working by the way that you feel। और आप देखोगे जब आप gratitude दिल से फीलिंग डाल के थॉट में, आपके थॉट में भी वही है, आपकी फीलिंग में भी वही है, आपके वर्ड में भी वही है, देन आपको रियलाइज होगा कि हाउ चेंजेस आर हैपनिंग। आप खुद ही आपकी फीलिंग में ही वो आ जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, यार हाँ यार आज थोड़ा तो चेंज दिखा मुझे मेरे हस्बैंड में, आज यार थोड़ा मेरी चेंज तो दिखा मेरे बॉस में, राइट? आप खुद को ही वो फील आ जाएगा। सो यू शुड फील अ लॉट बेटर अबाउट द सिचुएशन आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर वर्किंग इज योर फीलिंग्स लिफ्टिंग। आपकी फीलिंग्स के अंदर एक एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपको खुद को फील होगा कि एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जैसे अभी मंजूषा मैम ने बोला था कि एक एनर्जी फील होती है अभी रोज सेशन में आने के लिए। तो जो भी आप सिचुएशन है उसके लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, वो नेगेटिव सिचुएशन में से आपको एक एनर्जी शिफ्ट फील होगा। सो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं जो ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ वो वर्क कर रहा है क्या नहीं? योर फीलिंग्स विल स्टार्ट लिफ्टिंग, एंड सो व्हेन यू फील बेटर अबाउट इट यू विल नो द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड द सॉल्यूशंस विल अपीयर। अब सॉल्यूशंस कैसे अपीयर होगा? हम तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी तो आपके माइंड में आता होगा ना, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता होगा, राइट? कि कैसे हो रहा है ये, कि ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होगा, हम तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। सो द आंसर टू एनी नेगेटिव क्वेश्चन यू वुड वांट टू रिजॉल्व इज टू फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड ऑन इट। मैं बोली ना, एक बार आपको करने से सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिख दिया आपने तो हो गया काम मेरा, नहीं।
आपको वो एरिया में कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड, आज मैंने 10 लिखे, शाम को मैंने 10 लिखे, कल मैंने 10 लिखे, परसों मैंने 10 लिखे, या आपने एक बार बैठ के कंटिन्यूस 10 से ज्यादा लिखते गए, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड मीन्स जो मेरा एक नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर अभी ग्रेटफुलनेस लिख रही हूं एंड फील कर रही हूं और फील कर रहा हूं। So the answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आती है, जब तब तक आपकी फीलिंग्स, वो एनर्जी पावर लिफ्ट नहीं होता आपके अंदर, तब तक वो सिचुएशन सॉल्व ही नहीं होगी, बिकॉज आपकी एनर्जी शिफ्ट करनी है। आपको दूसरे को चेंज नहीं करना है, दूसरे को जाके सॉरी नहीं बोलना है, दूसरे को जाके बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी है एंड यू विल सी द सिचुएशन गेटिंग रिजॉल्व। बट कंटिन्यूस फोकस ग्रैटिट्यूड आपको करना है until you feel better inside, and then you will see the magic work its wonder in the outside world। फिर आप देखोगे कि कितने मैजिक्स होने शुरू हो रहे हैं आपके वो सिचुएशन में। सो इन मेकिंग योर रिटन लिस्ट, मेक श्योर यू लिस्ट ईच ऑफ द 10 ग्रेटिट्यूड्स, सॉरी 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन द फॉलोइंग वे। आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, प्लीज लिख लीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जो भी आपकी सिचुएशन है। I am so grateful for my daughter that at least she listens to me. I am so grateful to my boss that at least he appreciates me. He appreciates me sometimes. I'm so grateful to my husband that he listens to me and he takes me out for shopping. ऐसे करके आपको लिखना है, okay? And finish the sentence with what you are, and finish the sentence with what you are grateful for. यानी रीजन लिखना है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज वॉल्ट डिज्नीज वे ऑफ, अगर आपको आई एम ट्रूली ग्रेटफुल नहीं लिखना है, या आई एम सो, यू कैन ऑल्सो, आई एम सो ग्लैड दैट माई हस्बैंड एटलीस्ट टेक्स मी फॉर शॉपिंग, आई एम सो ग्लैड दैट माई हस्बैंड एटलीस्ट brings me clothes, आई एम सो ग्लैड दैट माई बॉस एटलीस्ट appreciates my work, आई एम सो ग्लैड दैट my boss provides me with all the facilities I need to work. So you can think like that and write if you want to use I am so glad that. Okay, so you can use that sentence अगर आपको फीलिंग उसके साथ आती है। लिखो और फील करो फीलिंग किससे आ रही है। And finish the sentence with what you're grateful for. And I'm sorry, I'm so glad that. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice, ये मेन है, by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution। मीन्स आपने पहले से ही बोल दिया कि मुझे उसका सोल्यूशन निकल के आ गया। आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, उसके बाद फील करना है और एंड में लिख देना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 times for the perfect resolutions, because here you are creating, you are going to create a solution। resolution का मतलब होता है solution। तो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 times लिखो फॉर द परफेक्ट सॉल्यूशन एट द एंड। सॉरी, when you have finished writing the perfect resolution, sorry, when you finish writing the 10 gratitudes or more, you can write how many ever you want, and then after that you write down thank you, thank you, thank you for the perfect resolution and see the feelings। हम 3 बार थैंक यू क्यों लिखते हैं? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग, 3 is creations number which we will be dealing further, that thing will come with what is creation number. 3 is a creation number, so that is why we write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution 3 times, because you're going to create a solution, right? We are writing gratitude so that ye negative situation mein se we can create some, we can resolve something। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अपने आप को नोटिस करो कि आप कितने माइंड में भी थॉट ला रहे हो नेगेटिव, या कुछ बोल रहे हो। जैसे आपके थॉट में भी आया, लिख दो कि आज मैंने मेरे थॉट में, अभी मैंने मेरी थॉट में
ये सोचा कि मुझे उसने ऐसे क्यों बोला था। अगर आप जोर से बोलते हो, कोई कंप्लेन कर रहे हो, कोई नेगेटिव भी चीज बोल रहे हो, उसको भी लिख दो। आज मैंने मेरे हस्बैंड से कंप्लेन किया कि तुम यार ठीक से बाजार की थैली भी पकड़ के नहीं लाते हो। कैसे हम छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं ना, वो ध्यान में आएगा आपको पूरे दिन में। आप अपने आप को नोट करो, दिस वर्किंग इज ऑन आवर सेल्फ बिकॉज दिस नेगेटिव सिचुएशंस वी हैव क्रिएटेड। और अब हमको रिजोल्यूशन क्रिएट करना है। सो टुमारो डू दिस, राइट ऑन द चिट्स एंड कीप ऑन कलेक्टिंग दैट चिट्स। कल मैं पूछने वाली हूँ कितने चिट्स जमा हुए हैं, एंड डू इट सिंसियरली। हाँ, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से मैंने कर लिया, मारिया को बोल दूंगी अरे मैंने तो 2 ही आज कंप्लेन किया। आप देखना अननोइंगली हम कितनी बार कंप्लेन करते हैं थॉट में, एवरी टाइम। So there is one important reason. See, and just for today, see if you are not going to be negative. If it may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this. वन डे क्या, अपने आप को चैलेंज करो कि मैं रोज नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। देर इज एन important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. करके मैं बोल रही हूँ आप ध्यान करो, बट यू विल हैव एन आइडिया आफ्टर वॉचिंग योर वर्ड्स फॉर अ डे। एक दिन में ध्यान को तो करके देखो आप दिन में कितनी बार नेगेटिव बोलते हो आपके मुंह से। एंड रिमेंबर, आपका एक्शंस भी नोट करना, आपके फेस के एक्सप्रेशंस नोट करना कि आप क्या करते हो। रिमेंबर दैट नेगेटिविटी एंड कंप्लेन ब्रिंग मोर ऑफ दीज थिंग्स, एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन स्टॉप। ठीक है यार, हो गया आज मेरे से, मैंने बोल दिया। बी अलर्ट नाउ, बी अलर्ट, एंड देन सेज थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे से ये बोलेगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू बोल दो उस समय। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन स्टॉप एंड डिसाइड इफ यू वांट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू से। क्या आप चाहते हो वो कॉन्सिक्वेंसेज जो आप बोल रहे हो, या आप अच्छी चीजें पे फोकस करना चाहते हो। So here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. देखो कितने अच्छी explanation दी है उन्होंने, कितने solutions भी दिए हुए हैं हमको ये book में। Stop immediately and say, but I have to say that I'm grateful for. जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो जाए, आपने मुंह से कुछ कंप्लेन कर दिया, तो इमीडिएटली पकड़ो अपने आप को और बोलो, बट आई हैव टू से दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। सिर्फ इतना भी बोल दिया ना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुझे किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। सो स्टॉप योर सेल्फ इमीडिएटली, क्योंकि ये चैलेंजेस आएंगे, आप नेगेटिव बोलोगे, आप कंप्लेन करोगे, तो आपको ये बोलना है फिनिश द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विथ समथिंग एनीथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जैसे अभी आप, जैसे कि आपने अभी कोई कंप्लेन कर दी, अरे तुम तो बाजार ठीक से लाते ही नहीं हो। इमीडिएटली यू कॉट योर सेल्फ, बोल दो, बट आई हैव टू बी ग्रेटफुल यार कि वो बाजार तो जाके ले आते हैं। यू सॉ हाउ आई चेंज द सेंटेंस, समझ में आया। आपने कंप्लेन क्या थी, अरे वो तो बाजार ठीक से लाते नहीं हो, राइट। आपके हस्बैंड को आपने कंप्लेन कर दी कि आप तो बाजार ठीक से लाते नहीं हो। आपने अभी इमीडिएटली अलर्ट हो जाना कि हाँ मैंने नेगेटिव बोल दिया, तो आप अपने आप को बोलो, अरे या बट आई हैव टू से, आई हैव टू लाइक, आई एम रियली ग्रेटफुल कि बाजार तो ले आते हैं। ऐसे चेंज करो, ऐसे पॉजिटिव में आओ। व्हेन योर वर्ड्स चेंज, यू क्रिएट दैट एनर्जी। Finish the rest of the sentence that you are grateful for. Take this magic lifeline with you. ये आपकी मैजिक लाइफ लाइन है, आई एम ग्रेट बट आई हैव टू से दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, विथ यू, एंड ग्रैब अ होल्ड ऑफ इट वेन एवर यू नीड इट। यानी जब भी आप नेगेटिव बोलना शुरू करो, अपने आप को पकड़ लो, और जब पकड़ लिया तो ये बोल दो। एंड इफ, ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, ये हेल्थ में भी, अगर आपने हेल्थ के बारे में ऐसा बोल दिया, अरे यार मेरे तो नीज काम ही नहीं करते हैं, अरे यार मुझे तो साइनस का ही प्रॉब्लम हो जाता है, अरे यार मेरे तो पेट में आज गड़बड़ है, पानी पूरी को याद कर ले एंड बी थैंकफुल फॉर इट। ओके, so and if any little problem situation appears in the future, remember to put the embers with gratitude before it grows into fire. embers का मतलब क्या होता है, जलता कोयला। जो आप अंदर से जल रहे हो ना नेगेटिव सिचुएशन में,
और कभी भी आगे भी ये कोई सिचुएशन, आज तो हमने एक एरिया लिखा है, आगे भी कोई सिचुएशन हो आपके पास और कोई एरियाज हो, आपको इसी तरीके से वर्क करना है। तो वो वही बता रहे हैं, हमको क्यों ये हाथ में जलता कोयला पकड़ के वो फायर को बढ़ाना है, हमको क्यों वो नेगेटिव एनर्जी में जाना है। वाई नॉट ब्लो ऑफ दैट फायर, वो जो जलता हुआ कोयला को बुझा दो उसी समय, बाय ग्रैटिट्यूड, पे ग्रैटिट्यूड, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे ना, आप वो फायर को बुझा दोगे, एंड एट द सेम टाइम यू विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, रीरीड योर लिस्ट जो आप रोज कर रहे हो, एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एट द एंड ऑफ इट। चूज वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन जो मैंने आपको बोला था, आपने लिखा था, अब आपको वो प्रॉब्लम लेना है। सिट एंड राइट डाउन 10 things which you are grateful for about that negative situation. Okay, and then end of the list में लिखना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। यानी आपने पहले से ही थैंक यू कर दिया यूनिवर्स कि आपने ये नेगेटिव सिचुएशन को अच्छा कर दिया। सॉरी। So just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. Challenge करो, आज तो मैं challenge लूंगी। Write down in your journal today. I take this challenge. Come on, take your books और लिखो, पेन लो, आपका पेंसिल उठाओ और लिखो, I take that challenge that I'm not going to speak negative. Write it down. If you notice yourself thinking or saying something negative, use your magic lifeline. Stop immediately and say, oh, but I have to say that I'm really grateful for. Okay, and then complete the sentence. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock. मैजिक रॉक को बोल देना रात में, मैंने आज क्या क्या नेगेटिव बोला उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आज से मैं चैलेंज लेती हूँ मैजिक रॉक कि मैं अपने आप को पूरा दिन पॉजिटिविटी में रखूंगी, और मैं जब भी नेगेटिव कर बोलूंगी मैं उसको पकड़ूंगी अपने आप, जो भी मैं नेगेटिव बोल रही हूँ मैं उसको पकड़ूंगी। सो दिस इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड? Can I? लाइक यू सेड पास्ट थैंकफुलनेस करना है, पास्ट थैंकफुलनेस जैसे मैंने पहले वॉशिंग मशीन खरीदा, सो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स में आ सकता है। आ सकता है। द Count your पास्ट blessings. थिंग ऑल्सो। See, count your blessings is basically what you are doing yesterday, what you did good things yesterday. जैसे count your blessings में हम रोज क्या लिखेंगे, आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कल मैं सुबह में उठी, आई वॉज अलाइव। मैंने सुबह में अच्छा ब्रेकफास्ट, मुझे एक कप चाय मिली गरम गरम, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। राइट, आप ये बोलोगे, फिर आपको और पूरा दिन में आपने खाना खाया, आप बाहर गए, आप ऑफिस में गए, आपने टिफिन अच्छा खाया, कोई कलीग अच्छी कोई चीज लेके आ गई थी, आपने वो खाई, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड काउंट योर ब्लेसिंग्स में लिखो कि आई एम ग्रेटफुल दैट टुडे आई गॉट दिस फूड टू ईट। आई एम ग्रेटफुल कि माई फ्रेंड आदित्य गॉट दिस टू ईट एंड आई वाज सो हैप्पी। बट इसके लिए फोकस, जब ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना आपके, अभी देखो आप आज आपका क्या है कि आपने जो एरिया लिखा है उसके लिए आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। फिर उसमें आपके पास्ट भी आ सकते हैं, जैसे इसने लिखा था कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई फादर, टू माई फादर फॉर टेकिंग मी टू द बास्केटबॉल एवरी सैटरडे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो पास्ट का लिखा, राइट। तो आपके ये 10 ग्रेटिट्यूड में, 10 ग्रेटफुल थिंग्स में, नेगेटिव सिचुएशन में आप पास्ट का भी लिख सकते हो कि पास्ट में क्या चीज अच्छी थी, उसमें उसमें क्या अच्छी चीज थी। फिर वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई भी हो, तो जॉब बट है दैट कैन तो कम इन द काउंट योर ब्लेसिंग ऑल्सो, राइट? जॉब। द डेली व्हाट वी राइट। In daily, see what we write. Yes, in daily you can write, but then we have past, present, and future. We are working when we do in the focus gratitude. But for your daily blessings, if you're just writing, count your blessings, try to make it कि कल मेरे साथ में क्या अच्छी चीजें हुई। ओके। Got it? But now when you're practicing this negative situation, that time you can write about past also. Past में आपकी जॉब अच्छी थी, past में आपके पास पैसा था, सॉरी,
पास्ट में वो बंदे के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा था, राइट अबाउट दैट। उसने क्या क्या अच्छी चीजें की, राइट अबाउट दैट। तो दैट कुड बी पास्ट ऑल्सो, इट कुड बी करंटली ऑल्सो, कि चलो भाई मुझे बाहर नहीं लेके जाता है बट एटलीस्ट घर में बाजार तो ले आता है, so that is a good thing. So you have to select all those good things, यानी आपको वो चीज में, वो सिचुएशन में गुड क्या दिखता है ना, उसको पकड़ना है। एंड देन एट द एंड यू हैव टू राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। गॉट? एनीथिंग एल्स क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड, तारा जी, रमेश कुमार जी, एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रैक्टिसेस? Yes, ma'am. One question. कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड जब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लिखते हैं ना, तो उस चीज को लेके मतलब हम है ना काफी बार इतने रेजिस्टेंस में आ जाते हैं कि भाई फिर वो लिखने का मन नहीं करता। मतलब फिर फीलिंग नहीं आती कुछ टाइम के बाद। ऐसा होता है कि छोड़ यार, नहीं करना इसके लिए, या मनी के लिए, कोई भी एक मतलब चीज के लिए, जिसके भी लिए लिखते हैं कि ठीक है जाने दो, जैसी हालत है ना उसी में ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो क्या करें? सी, व्हेन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्यों आता है? जब आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, राइट? तभी हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ग्रैटिट्यूड लिखो। फीलिंग नहीं आ रही है ना, जब फीलिंग नहीं आ रही उतने उतने टाइम के बाद छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, एंड देन अगेन यू कम बैक। दैट इज हाउ वी लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस। नहीं तो रेजिस्टेंस आता ही रहेगा, फिर आप बोलोगे अरे यार मैंने 10 लिख लिया, 20 लिख लिया, अरे बस हो गया, बिकॉज मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है। बिकॉज अंदर से आप रेजिस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो चीजें अच्छी नहीं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो अच्छी चीजें वो बंदे में या बंदी में, राइट? आप कोशिश बहुत कर रहे हो बट रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि आपने, आपके आगे जो पर्दा लगाया है ना उसमें आपको अच्छी चीजें दिख ही नहीं रही है। तो आपको वो पर्दा, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हो, आपको वो दिख नहीं रहा है, तो आप उस टाइम पे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जब रेजिस्टेंस आता है ना और आप उसमें लिखते हो ना, तो यू आर टेंड टू बी इन द नेगेटिव सिचुएशन ओनली अगेन। तो जब रेजिस्टेंस आएगा, उसको या तो अगर आप ओरली बोल के लेट गो कर सकते हो तो वेल एंड फाइन। जैसे आप मेंटली अपने आप को बोलो कि इट्स ओके यार, ये चीजें मेरे अंदर ऐसा, मेरा मन में अंदर, मैं लिख तो रही हूँ यार ये बंदे के लिए, पर ये मुझे मन नहीं हो रहा है, राइट? अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आता है ना, तो अपने आप को बोलो ठीक है ना यार धारा, पर तुझे तू ढूंढ ना अच्छी चीजें कौन सी है, चल तू कोशिश तो कर, और उसमें अच्छी चीजें कौन सी है। और वो ऐसे बोल के लिखना, अगर नहीं हो रहा है फिर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस टाइम के लिए छोड़ दो थोड़ी देर, come back after half an hour and start again the practice. Come back after half an hour and do the practice, because अगर आप रेजिस्टेंस में प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। रेजिस्टेंस आता है क्योंकि अगर बहुत डीप नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, तो रेजिस्टेंस इज, एंड आई एम हैप्पी यू आस्क दिस क्वेश्चन, कि रेजिस्टेंस तो अगर बहुत डीप नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, तो रेजिस्टेंस आता है, हर किसी को आता है, सिर्फ आपको नहीं हमको भी आता है। हर हर वो चीज में रेजिस्टेंस आता है कि मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों लिखूं, मुझे तो कोई चीज दिख ही नहीं रही है। क्योंकि हमने हमारे माइंड में इतनी नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज अपने अंदर भर दी है ना, हम तो वो नेगेटिव एनर्जी निकालनी है। और कभी भी मैं आपको बोलूं, जब भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आती है ना कि आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, वो जर्नल छोड़ो, दूसरी जर्नल लो, और वो जर्नल के अंदर अपने बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दो। अपने लिए जो ओके। ग्रेटफुलनेस आता है ना, कि यार धारा तू तो अच्छी है ना, तू कितना अच्छा काम कर लेती है, तू सोच तू इतना घंटा बैठ के इतना ग्रेटिट्यूड भी लिखी वो सिचुएशन के लिए जो तेरे माइंड में रिजॉल्व होगा कि नहीं वो भी तुझे पता नहीं है, राइट? तो उसके लिए ग्रेटफुल अपने आप को, कि मैं इतनी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं मन से लिखने की कोशिश तो कर रही हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल लिखो कि मैं मन से कोशिश तो कर रही हूँ ना। सो बी, स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ। फिर वो आपका माइंडसेट को शिफ्ट करेगा, क्योंकि फिर आप पॉजिटिव में आ जाओगे, क्योंकि आपको अपना अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जब आपको अपना हम्म। अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा ना, देन ऑटोमेटिकली यू विल देन स्टार्ट राइटिंग फॉर
the negative situation also good things. So try these two methods. दो methods बता दिया मैंने आप. ओके, Yes. थैंक यू। Yeah. Yes, मंजूषा जी बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, like suppose if I'm writing about my job, okay, जो प्रॉब्लम का solution पे लिखना है, तो if I write this way, I'm grateful that through my current job I have gained a lot of knowledge, which will be easier for me to get my dream job with a high salary. We can Yes. write it that way. Yes. Yes. You can write that way. मतलब हम नेगेटिव सिचुएशन में आगे और पॉजिटिव भी लिख रहे हैं, Positive. वैसा Yes. 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 वैसे ही प्रैक्टिस करना है. करना है. The more you practice this way, finding और good things in that. देखो हर बंदे में नेगेटिव होता है, हर बंदे में पॉजिटिव होता है. बट हमको क्या है ना, दूसरों का बहुत जल्दी दिखता है, हमारा हम्म. खुद का नहीं दिखता है. नहीं राइट. दिखता. नहीं दिखता है. आज मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, हो सकता है मुझे मेरा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो इवन आई नीड माई आई आस्क माई मेंटर्स, राइट, कि भाई मेरे अंदर क्या नेगेटिव हो सकता है, गिव मी फीडबैक. राइट. आई आस्क माई फ्रेंड्स, गिव मी फीडबैक. तो नेगेटिव हर बंदे में होता है, पॉजिटिव हम वी आर बोर्न दैट वे. नेगेटिव होता है तो ही तो हमको पॉजिटिव अच्छा समझ में आता है और दिखता भी है, राइट. अदरवाइज वो तो दिखेगा ही नहीं. अगर सब अच्छा अच्छा होगा तो बुरा क्या है वो कैसे समझ में आएगा. और हमेशा याद रखना, जब नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं ना, मैं तो बहुत खुश होती हूँ. जैसे मेरा कल यूट्यूब का चैनल का ये हुआ, पहले मेरे माइंड में आया, अरे क्या हो गया मेरा यूट्यूब चैनल, किधर चला गया, दिख नहीं रहा है, योर यूट्यूब चैनल हैज बीन रिमूव्ड, ऐसे लिख के आ रहा है, क्या हो गया. 2 सेकेंड्स के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए सिर्फ हुआ. उसके बाद आई वॉज अगेन बैक टू माई नॉर्मल. क्या पता इसमें मेरे लिए कुछ और अच्छी चीज हो, क्या पता मैं और नया नया चैनल क्रिएट कर लूंगी दूसरे ईमेल आईडी डाल के. मैंने यहां तक कि ऐसे ग्रेटिट्यूड लिख डाले. और अगर उन्होंने लिखा है वहां पे रिव्यू, तो मैंने उसको भी अपील में डाल दिया. हो सकता है वो रिव्यू करे और फिर से वापस डाल दे. राइट. आई एम दैट पर्टिकुलर कि हाँ मुझे मेरी प्रैक्टिसेस करनी है, उसमें से फिर जो भी अच्छा होगा वो होगा. राइट. तो यू हैव टू थिंक अबाउट वट एवर द नेगेटिव सिचुएशन इज, उसमें से मैं अच्छा क्या ढूंढूं. और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ये नेगेटिव सिचुएशन में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप से, मुझे क्या सीखने को मिल रहा है. और ये मैं अभिनय के मैजिक बुक में आई हूं तब से, ये इसके पहले भी मैं करती थी. मैं इसके पहले भी ये चीज करती थी, कोई भी मेरे पास नेगेटिव सिचुएशन आती थी ना, बिकॉज आई नेवर वेंट आउट फॉर सॉल्यूशन. क्योंकि मुझे वही होता था कि अगर 3 लोगों ने 3 अलग अलग चीजें, अभी भी होता है, अगर मैं किसी के कुछ पूछती हूँ ना और 3 लोगों ने मुझे कुछ बोल दिया ना, तो मेरा दिमाग ऐसे ऐसे करने लगता है, यार किसका सही है, किसका सही है, किसका सही है. तो फिर मैं कंफ्यूजन में आ जाती हूँ. तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू द प्रैक्टिसेस ऑन माई ओन एंड आई आस्क माई सेल्फ, तू बताओ व्हाट इज द राइट सोल्यूशन. Or I just put a chit and I pick it up. So that is the solution for me. I take that is the universe signal for me. बस मैं वही कर. क्योंकि अगर मैं भी खुद डाउट में आती हूँ ना कोई चीज के लिए, तो आई पुट अ चिट ऐसे इन द मैजिक बुक और इन योर होली बुक, वेर एवर यू वॉन्ट टू डू. एग्जैक्टली. सो आई से दैट यूनिवर्स इज गाइडिंग मी. उस तरीके से भगवान मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं. राइट. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. बिकॉज मैं मेरा ये है कि मैं अगर 4 लोगों से पूछती हूँ ना, फिर मैं करती भी हूँ फोर्थ वाला जो मेरा मन कहता है, ऐसा. तो वेन एवर यू आर इन डाउट ऑल्सो डू दिस. डोंट कीप ऑन आस्किंग कि ये करूँ वो करूँ या करूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड को सब पता है. आज मैं ये सिचुएशन में रहना चाहती हूँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आज ये चीज करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती हूँ, ये भी आपके माइंड को पता है. बट हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे ना उसको पूछने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते. ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैं जो भी डिसीजन लूंगी सही होगा, वो मेरे लिए आगे चल के सही होगा. और रॉन्ग भी हुआ तो मैं उसमें से कुछ सीख के निकलूंगी. निकलेंगे. राइट. वेन यू से टू योर सेल्फ ना, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छे ये भी लेने लग जाते हो डिसीजंस. लाइफ है, लाइफ में ये सब चीजें तो होने ही वाली है. राइट. एवरी डे. रमेश कुमार जी कुछ क्वेश्चन है.
ठीक है. So let's wind up. Okay, for today. So thank you everyone for joining. God bless you all with all that you Thank you. Thank you, ma'am. God Thank you bless so Thank you. much. abundance Good night. and the Lovely. solution for all your negative Thank situations. you, Maria. Thank you. Thank you, Tahir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Maria. Thank you so Thank you. much for today's Thank session. you. Thank you. Thank you.